Life has been साराभाई BC and साराभाई AD is very big director. बोला कि यार ये कहाँ से दूरदर्शन के चेहरे को लेकर के आ जाते हो यार, कोई ढंग का एक एक्टर लेकर के आओ. Immediately after 2 months साराभाई happened, but I went and thanked him for rejecting me. साराभाई में मैं वो स्पाइडरमैन हूँ जो अपने ही वेब में फंस गया. कास्टिंग, बड़े बड़े कास्टिंग एजेंसीज ने मुझे बोला था एक पॉइंट पे कि सब रोल्स तो बहुत आते हैं, ऐसा लगता है कि आप फिट करते हो, लेकिन इमेज कैसे ब्रेक करें. तो लालू जी वाज लाइक कि अरे तुम लोग बिहारी सब होकर के यहाँ इतना नाम कमा लेता है, मेरी पत्नी पहचान जाती है और तुम लोग बिहार में आकर के नहीं मिलता है हम लोग से. लव में कभी कभी सब टीवी तो विद्या बालन यूज टू प्ले माई वाइफ इन दैट. मुझे 21 साल लग गया तुम्हारा हस्बैंड बनने में वापस. और वैसे भी कपूर खानदान से बहुत लोग मुझे जोड़ ही देते कि यू रिजेंबल सो मच लाइक ऋषि जी. एंड सो आई मेट ऋषि जी वो सुपर नानी के सेट पे. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मुझे लोग बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि आई रिजेंबल यू सो मच. वो तो अच्छा है लेकिन तू एक्टिंग भी मेरी तरह करना, अच्छी एक्टिंग करना. आफ्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई हैड टेकन ऑफ. मुझे लगा था कि मतलब उसके बाद आई हैड उम्मीद, लेकिन वो जिस तरीके से शूट जितना हुआ था और जितना दिखा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था. मतलब आई एम स्टिल द रोसेश ऑफ दैट ग्रुप. रूपाली विल ऑलवेज बी मोनिशा ऑफ दैट ग्रुप. Ratna ji, her reactions to any WhatsApp message is very Maya Sarabhai. The most cliche question you have been hearing. बोलो. Season 3 कब आएगा? एक सीजन तो बनता है यार. When we talk about memory lane, I feel like my next guest is one of those people who contributes a huge part of it, because I feel I still watch him almost every other day. When I'm sad, I watch him. When I'm happy, I watch him. When I'm angry, I watch him. In any kind of emotion, he has given an iconic character like that no one can ever forget that, and it's always gonna be with you. But other than that, he has given such a diversifying portfolio of his that one just can only marvel at it. He has recently given an antagonist character as well in Haddi, and I feel like it just goes on to show his range, because this year itself, once a family man, once a villain, like he's portraying the whole of Graph together at it. So join me as I welcome for a trip down memory lane, Mr. Rajesh. So firstly, welcome to Bollywood Bubble, sir. Thank you so much, Akash. It's a pleasure and honor to be part of this, and ऐसा लगा नहीं था that you will come home and we'll have this chat, but चलो एक दूसरे को चाटते हैं आज. शुरुआत करते हैं उसकी. But like जैसे आपने बोला कि एक आइकॉनिक एक्टर बन जाता है, but people don't realize you actually started way before that. And I was reading upon your filmography, and you had done shows like Kusum also, which were heavily popular and all. So till the time Rosesh came, there was a long journey before that as well. At that time, how was it kind of getting up and kind of pushing yourself to go and do different kind of work? Because एक बार वो success आ जाती है, people still kind of see you as a different person. उससे पहले you have to kind of reach that that people actually recognize you and people actually call you for work. So वो वाला phase कैसा था? तो मुझे exactly, it's been 25 years now, and one thing which I keep on saying in all the interviews is that it's been 2 decades and it's still not decayed. तो ऐसे ही हम ये पंच मारते रहेंगे पूरे उसमें. So I would say that life has been Sarabhai BC and Sarabhai AD. So pre Sarabhai, that is 2004 के पहले की जो कहानी है, I had done, in fact I had learnt acting before that. 99 से actually शुरू हुई थी कहानी, और I had done lot of दूरदर्शन shows at that time. मतलब all these big names are likes of Ravi Kishan and Surendra Pal and Kishwar Merchant, Rajiv, बहुत सारे लोग, मतलब we all were like part of दूरदर्शन shows at that time. तो दूरदर्शन was very famous, and thankfully जब मैं काम कर रहा था तो मुझे एक इंसिडेंस याद है कि दूरदर्शन के फ़ायदे कैसे हुए थे. while traveling back from my hometown from Patna to मुंबई ट्रेन में, सो रात को सडनली समथिंग वेंट रॉन्ग विथ माई स्टमक, एंड देन आई स्टार्टेड प्यूकिंग एंड ऑल दो स्टफ, एंड देन आई वेंट एंड वेंट टू द टीटी, और मैंने टीटी को बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है.
तो टीटी पहचान गया बिकॉज ऑफ वन शो विच आई वॉज डूइंग वो शिकवा ऑन दूरदर्शन। तो कह रहा वो इमरान है ना शिकवा के? मैंने कहा हाँ। और हालत ख़राब है मेरी, मतलब बेहोशी वाली हालत है, बिकॉज आई लॉस्ट काइंड ऑफ ऑल वाटर एट 3 or 4 at night। कुछ खा लिया था या कुछ पता नहीं क्या हुआ था, फूड पॉइजनिंग हुई थी। बट वहाँ से कंपार्टमेंट से ड्राइवर तक मैसेज ट्रेन के अंदर गया कि टेलीविज़न का एक दूरदर्शन के एक्टर हैं जिनकी तबीयत बहुत ख़राब है, बट अनफॉर्चुनेटली जो नेक्स्ट स्टॉप था दैट वाज भुसावल स्टेशन एक है वहाँ पे था, विच वाज लाइक कि इट विल टेक अस अनदर 4 hours टू रीच देयर। सो दी होल पैंट्री कार के जितने थे वो आकर के नींबू पानी, मतलब द वे आई वॉज ट्रीटेड इन द ट्रेन, एंड थैंक्स टू इंडियन रेलवे, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से भी दे टेक केयर ऑफ दैट फैक्ट। और जब भुसावल स्टेशन पे पहुंचा मैं, तो आई वॉज लाइंग ऑन द साइड बर्थ, और मैंने बाहर की तरफ जब प्लेटफॉर्म पे देखा तो एग्जैक्टली ट्रेन के कंपार्टमेंट के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी, एंड देयर वर लाइक 4-5 डॉक्टर्स हु वर देयर, एंड दे ऑल वर देयर कि अगर बहुत सीरियस है तो यहीं से एम्बुलेंस में इनको ले जाएंगे और एडमिट कर देंगे, अगर ट्रेन में ट्रीट कर पाए तो ट्रेन में कर देंगे। दैट ट्रेन वॉज डिलेड बाई 45 minutes ऑन दैट स्टेशन, एंड आई कुड सी इट थ्रू यू नो द glass because people could not see inside. I could see वो डार्क ग्लासेस होती है ना एसी कंपार्टमेंट की, तो बाहर जब देख रहा था तो पूरी भीड़ जमा है एक दूरदर्शन के एक्टर को देखने के लिए कि उसकी तबीयत खराब है। सो आई हैड मतलब नेवर थॉट इन माई लाइफ दैट दूरदर्शन कैन ऑल्सो गिव यू फेम लाइक दैट। तो एक सहारा का शो था, उस समय सहारा भी एक चैनल था, सहारा वन, तो सहारा वन, तो उसके लिए उसमें एक शो था जिसके लिए मैंने ऑडिशन किया फॉर अ मेन रोल। दैट वाज वे बैक इन 2004 में ही हुआ था वो। तो आई ऑडिशन फॉर दैट रोल, एंड द डायरेक्टर, आई वोंट नेम हिम, इज वेरी बिग डायरेक्टर, बाद में बताऊंगा जब खत्म हो जाएगा तो कुछ ऑफ रिकॉर्ड, वो सब ऑफ रिकॉर्ड। तो उन्होंने जब मेरा ऑडिशन देखा तो क्रिएटिव हेड वो दोस्त थी हमारी, तो बोला कि यार ये कहाँ से दूरदर्शन के चेहरे को लेकर के आ जाते हो यार, कोई ढंग का एक एक्टर लेकर के आओ, ये सब कहाँ इन लोगों को मेन लीड दे पाएंगे हम। एंड दैट वाज द रिएक्शन, एंड वोंट बिलीव इट, दैट हैपेंड, एंड इमीडिएटली आफ्टर 2 months साराभाई हैपेंड। I met that director in one of the party, he won't remember, but I went and thanked him for rejecting me. सर आपने एक अलग रास्ता खोल दिया। तो उसके पहले वाली जो कहानी थी ना, वो प्री साराभाई, वो इन्हीं तरह के बहुत सारे इंसिडेंसेस से भरपूर थी। और फिर कुसुम मिला, फिर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि सब टीवी जो लॉन्च हुआ था वो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था टोनी सिंह दिया सिंह का, डीजेस का, लव में कभी कभी, वो उस प्रोजेक्ट से लॉन्च हुआ था। एंड कई सारे चैनल्स के लॉन्च में मैं बहुत भागीदार रहा हूँ, मतलब काफ़ी सारे स्टार वन साराभाई यू नो वाज देयर। तो लव में कभी कभी सब टीवी, तो विद्या बालन यूज्ड टू प्ले माय वाइफ इन दैट। हाँ, तो मैं इनफैक्ट आई डिड एन एड विथ हर कपल ऑफ मंथ्स बैक, एंड आई शोड हर द फोटोग्राफ ऑफ मी यू नो लाइंग डाउन एंड विद्या सिटिंग देयर, और वो कुछ हमारे शादी का सीक्वेंस था या कुछ ऐसा था। So Vidya was like, oh shit, this is how we used to look. I said, yeah, we were this छिपकली टाइप के दिखने वाले लोग थे हम लोग। But it took, that's what I told her, मुझे 21 साल लग गया तुम्हारा हस्बैंड बनने में वापस। बहुत कुछ किया कुसुम में। कुसुम का एक इंसिडेंस बताऊं तुमको? कुसुम सीरियल, सो सहारा श्री के बेटों की शादी थी, और कुसुम में जो मेरी वाइफ बनती थी चांदनी, वो अभी शी इज़ मैरिड टू वन ऑफ द सन ऑफ सहारा। तो मैं गया था शादी में, सो आई रिमेंबर आई वॉज स्टैंडिंग एक भीड़ में, जो VIP टाइप का जो एक एरिया बना हुआ था, तो मैं वहाँ पे खड़ा था, मिल के आया था मैं स्टेज पर से और बाहर आके खड़ा था। तो लालू प्रसाद यादव वॉज चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, एंड राबड़ी देवी वॉज देयर, एंड भीड़ लगी हुई थी, एंड सहारा जी वॉज टॉकिंग टू लालू जी, दे वर अबाउट टू लीव, एंड आई एक्चुअली केम इन लाइन ऑफ राबड़ी देवी, मतलब उन्होंने देखा मुझे उधर, एंड देन सडनली शी लुक्स एट मी एंड शी सेज, ए
इधर आओ। तो आई सेड जी तुम शशांक है ना, कुसुम में कुसुम का भाई बनता है? तो मैंने कहा हाँ। तो लालू कौन है ये? तो अरे नहीं, एक सीरियल हम लोग देखते हैं कुसुम, उसमें ये कुसुम का भाई बनता है शशांक। तो मैंने कहा मैं बिहार से ही हूँ। तो लालू जी वॉज लाइक कि अरे तुम लोग बिहारी सब होकर के यहाँ इतना नाम कमा लेता है, मेरी पत्नी पहचान जाती है, और तुम लोग बिहार में आकर के नहीं मिलता है हम लोग से। तो ये ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंसिडेंसेस उस जमाने में होते रहते थे। And then when Sarabhai happened, I remember when I came back from the audition, I just told my wife, newly married at that time, and my sister was also here. So I just told them, I said, if this project happens for me, na, somehow I have this feeling that my career will change. Yeah. And I remember precisely that moment. I was sitting on the floor and I was all stressed out because 8 घंटे ऑडिशन करके आया था मैं, एक ही अकेला मैं ही था, 2 से 10 के बीच में पूरा ऑडिशन देके आया था. So I was tired, exhausted, but I just had this feeling from within that if this work, this will change my career. But I never knew that it will change in such a way that after 20 years, आज भी लोग पीछे पड़े, अगला सीजन कब आ रहा है? एग्जैक्टली. इनफैक्ट मैं वही अब बोलता भी हूँ लोगों को कि सारा भाई में मैं वो स्पाइडरमैन हूँ जो अपने ही वेब में फंस गया. निकल ही नहीं पा रहा यार, इससे निकालो किसी तरह से. वो भी डिस्कस करेंगे. पर मैं एक्चुअली मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, आई एम एक्चुअली स्टक ऑन दैट लालू जी की मीटिंग. आई नो, बिकॉज इट फील्स सो मतलब नेचुरल ना कि आप उनसे वो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो उस वैसे बोल. अरे दैट मैरिज वाज फेरी टेल फॉर मी बिकॉज आई रिमेंबर जब हम लोग स्टेज पे व्हेन आई वाज गोइंग टू कांग्रेचुलेट हर, तो एनी विच वेज that whole marriage had a very dream sequence kinds, क्योंकि who is who, I mean everyone was there, so the security was amazingly heavy. In fact जब फ्लाइट यहाँ से उड़ी थी तो फर्स्ट टाइम मतलब मैं तो ऑटो से गया था, तो गाड़ी भी नहीं थी उस समय, तो ऑटो से जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा, उस समय तो वो छोटा एयरपोर्ट था ना ये वाला अपना जो टर्मिनल 1 है, इट यूज्ड टू बी अ वेरी लोकल एयरपोर्ट काइंड्स, तो जैसे ही ऑटो से उतरा तो सडनली, एंड आई वाज कैरिंग दैट कार्ड, दैट मैरिज कार्ड, तो सूट था, एक छोटा सा बैग था और वो मैरिज कार्ड था. तो द मोमेंट आई गॉट डाउन, सडनली 3-4 ऑफ देम, दिस कम सर, यू हैव कम फॉर द मैरिज. आई सेड या सर प्लीज वॉक विद अस. एंड मैंने कहा यार ऑटो से निकल गए, वॉक विद अस कहाँ लेके जाएंगे ये लोग. तो वो अंदर लेकर के गए, तो फिर वहाँ पे हेमा जी बैठी हुई हैं, रंजीत जी बैठे हुए हैं. फिर तब तक फ्लाइट में बोर्ड करने का हुआ, तो वो सहारा जी की वो जो सहारा फ्लाइट जो थी, अंदर गया तो पूरा ऑर्किड से सजा हुआ है, ट्यूलिप से सजा हुआ है. भाई साहब वो हवाई जहाज अगर गिर जाता ना, वो $1 बिलियन का हवाई जहाज था. Because I was reading a newspaper and I was reading the sports section and उसमें सचिन तेंदुलकर है, और ऐसे मैंने किया तो यहाँ सचिन तेंदुलकर बैठे हुए हैं, वहाँ पे बोनी जी बैठे हैं, श्री देवी, मेरे बगल में कादर खान. आई वाज लाइक यार ये कौन से जोन में हूँ मैं लाइफ में, इतना तो फेम के बाद निकला था और इतना तो फेम भी नहीं हुआ है, लेकिन ये कुछ अलग ही दुनिया. सो व्हेन आई रीच देयर, आई रिमेंबर कि जब मैं स्टेज पे जब इनसे मिलने जा रहा था, तो 5 सीढ़ियाँ थी, ठीक है, वो स्टेज पे चढ़ने की. तो पहले सीढ़ी पे इट वाज यस्टरएयर एक्टर विश्वजीत जी, उनको तुम जानते होगे. तो विश्वजीत जी थे पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे मुलायम सिंह जी थे, तीसरे स्टेप पे बच्चन साहब थे, चौथे स्टेप पे सहारा जी थे. तो आइए मैंने कहा यार ये कहाँ हूँ मैं, मतलब इट वॉज लिटरली अ फेरी टेल आई हैड सीन. सो आप जब इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो उस समय एक झूठा एहसास भी होता है आपको कि यू हैव अराइव्ड, बट जब वहां से आप बाहर निकलते हैं तो आपको ऑटो पकड़ना पड़ता है, तो यू हैव नॉट येट अराइव्ड. गए ऑटो में तो आए भी ऑटो में ही है, ये बीच का समय हो गया, ये एक ड्रीम सीक्वेंस चल रहा है लाइफ का. बट दैट्स फन यार, दैट्स पार्ट ऑफ दिस होल दिस होल industry का. Yeah. But how did the growing up in Patna, Gaya, I think correctly, growing up there, मतलब acting fascination क्यों? यार कुछ नहीं पता मुझे ये क्यों हुआ है. बहुत डिफ़ॉल्ट एक्टर हूँ मैं, तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ. इनफैक्ट मेरे PR वाले मुझे बोलते भी है कि सर एक
पोर्टफोलियो तो बनवा लो, बिकॉज मुझे 25 साल इंडस्ट्री में हो गया, आई नेवर शॉट अ पोर्टफोलियो। आज तक मैंने सिर्फ 2 फोटोज़ खिंचवाई थी स्टूडियो 90 पे, उसी की वजह से काम मिला था। फिर क्या होता था कि हम लोग जब डेली सोप का ज़माना आ गया था ना, तो हम लोग जानबूझ करके अच्छी फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे, क्योंकि अगर आपका प्रोड्यूसर से झगड़ा हो गया या किसी से झगड़ा हो गया तो सडनली वो आपको मार देंगे और आपकी अच्छी फ़ोटो का दीवार पे टांग देंगे और हार पहना देंगे। तो उस चक्कर में हमने कभी फ़ोटो अच्छी खिंचवाई नहीं कि ये सोच करके काफी अलग है। हाँ सीरियल से निकाल देंगे तो ये तो दीवार पे टांग देंगे यार। तो कभी ऐसा आड़ा टेढ़ा, कभी मुंह जिसमें छुपा हुआ, कभी कुछ ऐसे करके ना सारी फोटोज खिंचवाई थी। तो पोर्टफोलियो डेफिनेटली नहीं बना, लेकिन ये था कि जब गया मैं था तो आई डिड अ प्ले व्हेन आई वाज इन नर्सरी, बट नेवर वांटेड, बिकॉज कोई लेना देना नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से हमारे ना, पूरे बिहार में किसी को 7 पीढ़ियों से इंडस्ट्री से लेना देना नहीं था। So I had come basically to Mumbai to look after my sister. She was pregnant at that time और मैं कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ था और मैं उनकी देखरेख के लिए आया था। Then I met someone जिनका मैंने प्ले देखा था, एक मेरे फ्रेंड हैं हर्ष खुराना, एक एक्टर हैं, तो मैंने उनका प्ले दिल्ली में देखा था एंड आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज प्ले बिकॉज अमेजिंग कॉमेडी ही हैड डन। So I happened to meet him in the locality and I told him कि I'm here for 2-3 months. So कहीं पे कुछ plays वगैरह अगर हो रहा हो तो if I can just go and spend my evening, because दिन भर अब कोई काम ही नहीं है आपको, आप you're just waiting for, खत्म करके आ गए हैं, खत्म करके बैठ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगला क्या करना है, यूपीएससी करना है कि जर्नलिज्म करना है, मास कॉम करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो he took me to, he had written a play which was being rehearsed. तो मैं वो प्ले के रिहर्सल में जाने लगा, सिस्टर की डिलीवरी हुई और सिस्टर और ये लोग निकल गए अमेरिका, मैं रह गया बॉम्बे में। वो प्ले ख़त्म का, वो कमिटमेंट के चक्कर में, वो कमिटमेंट से उसमें से कोई कास्टिंग वाले बन गए, जोगी भाई करके एक जोगी हैं जो कास्टिंग करते हैं, वो उन्होंने ट्रैक सिनेमा ज्वाइन किया था। उस समय अग्नि चक्र वगैरह आता था एक शो जी पे, उसमें उन्होंने मेरी पुलिस में कास्टिंग शुरू कर दी थी। मुझे लगा मैं इंडस्ट्री का इफ्तिकार बन गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, आई एम हैप्पी कंटेंट इन माय लाइफ कि अब इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। कुसुम वाले फेज में मुझे लगता था कि मैं इंडस्ट्री में बड़े भाई का रोल बहुत अच्छा कर लूँगा, सो आई विल बी मोनिश बैल, नेक्स्ट मोनिश बैल। So every time the whole aspiration was around these people only, कि इफ्तिकार साहब कि अच्छा कमिश्नर बन के तो रिटायर करूँगा ही, अब इंस्पेक्टर में घुसा हूँ मैं। देन मोनिश बहल में कि अच्छा बड़ा भाई है तो एक टाइम आएगा जब आलोकनाथ की तरह बाप भी बनने लगूंगा मैं। So that's how I had seen, because there was no fixed way of seeing कि एस्पिरेशन की अरे यार एक्टर बन के दिखाई देना है, तो कभी वैसा रहा ही नहीं और आज तक वही नहीं है। तो चीज़ें होती चली गई हैं ऑनेस्टली, एंड विद ऑल ग्रैटिट्यूड आई मीन ग्रेटफुल कि एक ही चीज़ सिर्फ नहीं छोड़ी मैंने इन सारी चीज़ों में, वो ये था कि जब मिला तो लगन और ईमानदारी से काम किया है। But like Student of the Year also was one of the first films you did, and इतने टाइम बाद and you chose to have it was like a very small Student role. of the Year मेरा लास्ट उसके बाद फिर 5 साल फार्मिंग में चला गया था। सो दैट आफ्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई हैड टेकन ऑफ। मुझे लगा था कि मतलब उसके बाद आई हैड उम्मीद, लेकिन वो जिस तरीके से शूट जितना हुआ था और जितना दिखा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हाँ, there was not much into it. So तो मतलब शुरू में आपको कुछ जो बताया नहीं, शूट काफ़ी हुआ था यार, मतलब आप अगर किसी भी शेड्यूल में, फिल्म के शेड्यूल में अगर आप 15-16 दिन शूट कर रहे हैं तो रोल इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ। वेदर आपका प्रेजेंस हो या फिर आपको डायलॉग्स मिले हो या आपके सीन्स हो 1-to-1 हो, बट उसमें कैंची ऐसी चली कि वो सिर्फ वो बाली, वो ये क्रूकट बाली बचा था। में यहाँ पे कैंची चली, वहाँ पे सीन से कैंची चली। बट मैं वही बोलता हूँ कि देखो सारा भाई में भी रोसेश का जो कैरेक्टर था वो बाल की वजह से ही अलग दिखा, हड्डी में भी बाल की वजह से। मेरे से बड़ा बाल कलाकार कोई हो नहीं सकता। सारा भाई में ना मुझे बस एक सवाल है जो मेरे को लगता है, आई डोंट थिंक किसने पूछा है, बट आई डोंट नो पूछा नहीं पूछा, मुझे ये है कि when it started your voice was different, in the middle it changed. Why did that change occur? मतलब वो कैसे, मतलब no, it was the whole journey was to reach there.
तो क्या हो रहा था कि पहला 4 एपिसोड 8 ही दिन हम शूट कर रहे थे. ऐसा नहीं था कि 30 दिन शूट कर रहे हैं तो यू आर इवॉल्विंग एवरी डे. सो यू आर गेटिंग ओनली 8 days टू इवॉल्व विथ योर वॉइस. तो वो पहला 4 एपिसोड में, पहला एपिसोड में एक ही सीन था, दूसरा एपिसोड में एक सीन था, थर्ड एपिसोड में मैं था ही नहीं, फोर्थ एपिसोड में 2 सीन थे. तो वहाँ पे आपको टाइम ही नहीं मिला कि आप अपने आप काम कर सकें. सेकंड उसका जब 4 हुए तब वहाँ से कहानी धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हुई कि उस तक पहुंचने की एक जर्नी थी. If you pick any 2 random episodes, हाँ, अलग रोसेश है. की आवाज सेम नहीं है. नहीं है. किसी भी एपिसोड में किसी में एकदम से मतलब स्टार्टिंग में तो हाँ मामा मतलब वो लो पिच है correct. बीच में जाके वो वाली भी है. हाँ करेक्ट. बाद में फिर आई कुड रिलेट दैट यलगार एक फिल्म आई थी ना सैफ अली खान से. तो उस समय जो सैफ की आवाज रही होगी ना, इट वाज वेरी क्लोज टू दैट. जैसे लोग जो बना देते हैं उनका वाओ ये वाला जो है ना, तो इट वाज वेरी क्लोज टू दैट. Very close to that. हाँ. बट वो वहाँ तक पहुँचने की यात्रा है यार, वो कि वो वहाँ मतलब इस बेस से हेलो वहाँ ट्रेबल तक पहुँचना ना, इट बिकम्स, और उसको अपना बनाना. या इट्स अ जर्नी ऑफ इट्स ओन भाई पूरा. एंड आई हैव टू से मतलब लोग आज कितना भी उसको पसंद करते हैं कितना भी लॉट करते हैं, साराभाई वाज नॉट अ हिट No. when it released. Yeah. It took a lot of time for that success to happen. Absolutely. And since आपने बोला कि मतलब you had an inclination कि ये रोल कुछ ना कुछ करेगा. But वो immediately नहीं हुआ था. So उस समय वो disappointment आई थी. क्या यार 2008-2009 तक मतलब 2005 में साराभाई ख़त्म हुआ था, 2008-9 तक तो किसी को पता ही नहीं था कि कोई ऐसा शो है. बट हाँ 2009 में it became a hit. It took good 4 years after it got over, taken off. फिर उसके बाद तो पता चला 21 रीरन्स हुए उसके यार. वो तो हर 8:30 बजे कोई नया प्रोग्राम लॉन्च करना है तो 1 महीना साराभाई चला देते थे, फिर उसकी टीआरपी बढ़ती थी. हाँ तो उसकी टीआरपी बढ़ गई और वो डेली सोप की तरह चलने लगा ना, तो उस स्लॉट की टीआरपी बढ़ गई, तब नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया. तो उस चक्कर में साराभाई 21 बार, कभी 9 बजे, कभी 9:30 बजे, कभी 10 बजे, कभी 10:30. साराभाई was the opening act for this year. Yeah, absolutely यार. In fact, when the second season happened, those 10 episode, 2015-2016 में शायद, तो 2016 में हाँ, तो उस समय OTT platforms were not hit. Hotstar had just come. हाँ. So साराभाई was again part of boosting Hotstar. तो साराभाई हमेशा वैसा ही रहा है कि किसी को अगर सर पे किसको कुछ चाहिए लो साराभाई चला दो. उससे पहले लॉकडाउन के टाइम भी तो वही हुआ था. ठीक है, अपना फायदा हो जाता. रॉयल्टी तो आई जाएगी. चल दो. अरे वो प्रोड्यूसर के लिए. व्हेन आई वाज डूइंग साराभाई, आई रिमेंबर एक इंसिडेंस था कि मेरे रत्ना जी के साथ एक सीन लगा हुआ था एंड रत्ना जी का कंधा था एंड मेरा चेहरा था. एंड दैट डे नसीर जी हैड कम ऑन द सेट. सो आई कुड सी फ्रॉम कॉर्नर ऑफ माई आई कि मॉनिटर पे नसीर जी बैठे हुए हैं एंड आई वाज शिवरिंग, मतलब डर से हालत ख़राब मेरी. तो शॉट चल रहा है, प्रॉपर कर दिया, तो अचानक डायरेक्टर जो मैं देवेन भोजानी, उन्होंने बोला कट राजेश रिएक्शन नहीं आ रहा है तेरा. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सर, एक और करते हैं. 2 टेक, 3 टेक, 4 टेक, एंड आई कुड सी दैट ही इज गेटिंग डायरेक्टर. हाँ मतलब थोड़ा सा देवेन वॉज गेटिंग इम्पेशेंट. देन देवेन गॉट लिटरली इम्पेशेंट. क्या तुझे समझ में नहीं आता है कैसे रिएक्शन देते हैं, तू मॉनिटर आकर के देख. तो अब मॉनिटर पे आगे नसीर जी बैठे, मैं पीछे खड़ा होकर के देख रहा हूँ. तो मुझे दिख रहा है कि जब मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तो आई एम वेरी अलर्ट, और जब मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ तो आई एम वेरी डेड. फेस ऐसा ही है, और फिर जब बोलने का टाइम आ रहा है तो मैं अलर्ट हो जा रहा हूँ. सो आई लगा हाँ यार ये तो रिएक्शन, मुझे लग रहा है कि मैं रिएक्शन दे रहा हूँ क्योंकि आप डेली सोप से ट्रेंड थे. तो नसीर जी को समझ में आया सिचुएशन की थोड़ा ऐसा वैसा है, तो ही सेड कि देवेन कैन आई टेक हिम टू द रूम फॉर अ मिनट. मैंने कहा अभी बेटा क्लास लगी, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हुआ. तो रत्ना जी का मेकअप रूम में नसीर जी लेके गए, कम सिट. देन ही टोल्ड मी वन थिंग, ही सेड कि देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्टर्स, ईदर दे आर बॉर्न लिसनर or they have to inculcate the habit of listening. Start listening and your problem will be solved. You won't believe it. It took me 7 years after that to start listening.
तो मैंने सुनना शुरू किया एज एन एक्टर एंड देन बाय द टाइम आई वाज डूइंग अपना शर्मा या बाद वाले जो शोज थे, वो सुनने की वजह से पीपल, सो माई रिएक्शंस वेंट वेरी स्मूथ, सो पीपल थॉट आई एम यू नो, वहाँ से समझ में आने लगा लोगों को कि एक्टर अच्छा है बिकॉज इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ही इज रिएक्टिंग एंड रिएक्शन वाज हैपनिंग ओनली बिकॉज आई वाज लिसनिंग। लाइक सुपर नानी से पहले कोई फिल्म के ऑफर्स पहले आए करते थे या मतलब कभी वो था ही नहीं उसमें? नहीं आया तक कभी नहीं। नहीं सुपर नानी से Honestly. एंड यू स्टार्टेड विद लाइक रेखा जी। yeah, that was another experience. In fact उस बारे में कभी कोई बात ही नहीं हुई है, कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, बट रेखा जी का मैं एक चीज़ बड़ा कमाल का फ़ैन था कि शी हैज़ सो मच ऑफ सेंस अबाउट लाइट ना, कि भाई साहब वो सिनेमाटोग्राफर को बता देती थी कि यहाँ पे तेरी एक लाइट मिस है जिसकी वजह से ये शैडो आ रहा है, और वो मुझे कभी समझ में ना आया यार। मतलब जो इंच टेप पे मार्क है ना, वो वहीं पे पहुंचेंगी, और अगेन वेन एवर आई यूज टू सी यू नो फ्रेम एंड ऑल, कि हाँ वो सही बोल रही है कि आँख के नीचे शैडो आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो यू नीड टू प्लेस समथिंग टू मेक इट लुक क्लीन, यू नो। तो ये सारा रणधीर जी थे उस फिल्म में, एंड आई गॉट अलॉन्ग वेल विथ रणधीर जी सो मच कि एक टाइम पे मैं रणधीर जी की जब आवाज़ निकालने लगा तो मुझे लग रहा था कि मैं रणधीर जी से कभी कभी ऐसा, सॉरी रणधीर जी, मुझे लगता था कि मैं उनसे बेटर आवाज़ निकालता हूँ। बट वी गॉट अलॉन्ग वेल, सो अमेजिंग इंटरेक्शन आई हैड विथ रणधीर जी। मतलब वो मुझे और मैं वो और बैठते थे तो कहते तू ना यार, तू 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 टेस्ट क्रिकेटर है, यू नो यू आर टेस्ट क्रिकेटर, आई लव बीइंग विथ यू, बातें होती है तेरे साथ। सो आई यू नो आई वाज सो क्लोज टू, और कितनी बातें, मतलब आर के स्टूडियो में शूट करने जाता था तो आई यूज्ड टू कॉल हिम अप कि सर मैं आया हुआ हूँ, इनफैक्ट इफ यू आर कमिंग आई विल बी देयर एट 3 o'clock, आई विल बी देयर एट 3 o'clock। ओह व्हाट अ टाइम एक्चुअली। एंड बहुत, और वैसे भी कपूर खानदान से बहुत लोग मुझे जोड़ ही देते हैं कि यू रिजेंबल सो मच लाइक ऋषि जी, एंड सो आई मेट ऋषि जी वो सुपर नानी के सेट पे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मुझे लोग बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि आई रिजेंबल यू सो मच, सो एक फ़ोटो तो साथ में खिंचवा लेंगे। तो बोला हाँ, तो सुन वो तो अच्छा है लेकिन तू एक्टिंग भी मेरी तरह करना, अच्छी एक्टिंग करना। यार हाँ, मतलब मैं और रणधीर जी उस फिल्म में थे तो सही में ऐसा बाप बेटे लगते थे ना हम लोग। एक्चुअली यू रिजेंबल द होल कपूर खानदान। बिहारी छोड़ करके मैं सब में रिजेंबलेंस है मेरा। यू टेक, आई एम सच अ सेकुलर एक्टर। आई लुक लाइक पंजाबी समटाइम्स, आई लुक लाइक गुजराती, आई लुक लाइक कश्मीरी, आई लुक लाइक पहाड़ी, आई कैन बी अ हरियाणवी ऑल्सो बट नॉट बिहारी। और अभी बताओ हूँ बिहार से, कोई एक्सप्लोर, मैं तो थक गया हूँ बोल बोल के, एक बार बिहारी दिखा, एक्सप्लोर करने का चांस दे दो। जब लालू जी नहीं पहचाने पहली बार में, वो सबसे ज्यादा बिहारी, वो नहीं पहचाने कैसे और कोई पहचानेगा। बट लाइक यू सेड ना कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, यू वेंट फॉर फार्मिंग फॉर 5 years, वो क्यों सोचा, व्हाई टू गो अवे फ्रॉम दिस? यार देख, उसका ना एक बड़ा, उसको स्पिरिचुअल बात नहीं बोलेंगे, मैं बहुत प्रैक्टिकल बोलता हूँ। तो मेरा हमेशा से यही मानना था कि अगर हम मनुष्य नहीं होते, कोई और जानवर होते, इसके मनुष्य के अलावा तो बाकी सब जानवर ही है ना। गधा होते तो धोबी का कपड़ा उठाते, कुत्ता होते तो शायद किसी के यहाँ बंधे रहते या स्ट्रे में होते, तो आपके पास करने के लिए और सोचने के लिए तो कुछ नहीं था। ये तो इसी योनि में आप सोच भी रहे हैं, गाड़ी भी चला सकते हैं। सो हमारे कल्चर में, जैसे मेरे यहाँ तुम फोटो एक देखोगे मूर्ति, तो देवी देवता अक्सर उनके 10 हाथ बने हुए हैं। सो 10 हाथ का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे शरीर से 10 हाथ बाहर निकले, बट द मोमेंट यू आर ह्यूमन यू कैन मल्टीटास्क, दैट इज सिंबॉलिक टू इट। इट्स अ सिंबॉलिज्म विच टेल्स यू कि आप सिर्फ एक्टर ही बन करके इस योनि को मत काट दीजिए। आप कुछ और मीनिंगफुल भी चाहे तो कर सकते हैं। आप गाड़ी भी चला सकते हैं, आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। दैट इज वेयर दैट होल आइडिया ऑफ फार्मिंग स्ट्रक मी, कि इट इज़ द नीड ऑफ आवर राइट नाउ, कि हम लोग वी हैव कम टू अ वर्ज वेयर 62% ऑफ लैंड इन इंडिया, एग्रीकल्चरल लैंड, इज एक्चुअली इन डेंजर. The organic content
actually 62% of India, the organic content in the soil has gone down to 0.58% because of heavy use of chemicals and fertilizers and urea. So we are on verge of desertification in next 10 years. Now imagine कि 140 करोड़ की आबादी और 62% तुम्हारा एग्रीकल्चरल लैंड अगर डेजर्ट हो जाएगा तो तुम खाना कहाँ से खिलाओगे? And that is where this whole concept of Mera Family Farmer I started, where after 1.5 years of running the pilot, whether I'm doing it right or not, 5 साल की मेहनत के बाद 1.5 साल मैंने वो पायलट उसका रन किया कि as you have a family lawyer, family doctor, why can't you have a family farmer? So when I did that pilot, I did it with good 200 odd people across Mumbai, जहाँ पे मैं नॉट इवन ऑर्गेनिक बट नेचुरल तरीके से सारी चीज़ें उगवा रहा था किसानों से, एंड आई रियलाइज दैट देयर इनकम डिड नॉट डबल अप बट इट वेंट अप 4 times. Yeah, and I started with 5 acres of land where approximately now 300 plus acre land has gone chemical free. So I said ki if that can happen at this small level, I mean if this is picked up, it can blow up the whole, bring that change. कि suddenly the soils are getting revived and suddenly the organic content जैसे ही तुम्हारा soil में बढ़ेगा ना, जिस दिन वो 3 से 4% पे पहुंच गया ना, तुम्हारा समझ लो कि विटामिन मिनरल इस तरह के जो भी पिल्स खाते हो ना, वो 60-70% ख़त्म हो जाएगा. सो दैट इज़ वेयर आई थॉट कि वी कैन रिवाइव दिस, and if our generation takes it up, the next generation can follow it up in a beautiful way. So acting तो मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, अपना घर चलाने के लिए, अपने परिवार के लिए. जो perks हैं, fame और वो सब तो मिल ही रहा है, लेकिन next generation के लिए impactful क्या है? The only thing is farming, because this is the only thing which will be there till your last day. गाड़ी ना हो चल जाएगा, हवाई जहाज ना हो तो भी चल जाएगा, खाना तो चाहिए. खाना तो चाहिए. But do you see that interest in your kids also? Yes, in fact, my younger one is much more interested. Elder one is already in Isha Home School, सदगुरु के यहाँ वहाँ पे कोयम्बटोर में. तो he is absolutely living in the nature. उसको मैं वहाँ से मुन्नार लेके गया घुमाने के लिए, तो मुझे कह रहा तुम ही एक्साइटेड हो, मैं तो रोज़ इसी में रहता हूँ. तो आई सेड कि जहाँ नहीं मिलता है वहाँ तुम्हारी क्या फीलिंग आती है? बोलो बहुत इरिटेट होता हूँ, लगता है कि इतना खाली ज़मीन पे यार कुछ तो पेड़ लगा दो. So they have started seeing it differently, they have started, because I love when they say that कि father is actor / farmer. तो मुझे अब अच्छा लगता है सुनने में. But as you earlier said ना कि साराभाई का you are the Spider-Man जो फंस गया. हाँ. Like giving an iconic character is like very difficult, but I feel like उससे बाहर निकलना is much more difficult. Yeah. Because आप कितना भी काम करो, कुछ भी करो, एक बार वो associate हो गया, and I feel that is more prevalent in TV more than films, because films still आप iconic actor वो 3 घंटे के लिए दियो. Correct. TV आप कुछ भी हो एटलीस्ट 10, 12, 15, 30 एपिसोड तो दिए ना. सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट. सो आपके लिए वो कितना डिफिकल्ट रहा, स्पेशली क्योंकि वो रिकग्निशन शो के 5 साल बाद मुझे ना वो वर्क वाइज ट्रांसलेट एक पॉइंट के बाद उसका वर्क वाइज ट्रांसलेशन बंद हो गया. वो ट्रांसलेट नहीं हुआ मेरे लिए. जो ज़्यादा एक पॉइंट आ गया था कि पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट विथ मी. दे ऑलवेज, इनफैक्ट कास्टिंग, बड़े बड़े कास्टिंग एजेंसीज ने भी मुझे बोला था एक पॉइंट पे कि सब रोल्स तो बहुत आते हैं, ऐसा लगता है कि आप फिट करते हो, लेकिन इमेज कैसे ब्रेक करें. तो मैंने बोला एक बार मौका दो तो इमेज ब्रेक होगा ना. एंड थैंक्स टू पराग, उसने मौका दिया. तो मैं बाकी कास्टिंग वालों को वही बोलता हूँ कि भाई एक ने दे दिया, अब तुम लोग भी दे ही दो. तो एड्स वैड्स तो ठीक है, वहाँ तो आपको एक सर्टेन लुक चाहिए होता है और आप वो कर लेते हो, लेकिन when it comes to OTT, when it comes to films, I think they have to see me in different light. True. So उस समय सारा भाई से यही एक इशू हो गया था कि वो इमेज ब्रेक कर रहा. तभी मैं बोल रहा था कि वो ऐसा स्पाइडरमैन था जो खुद के ही वेब में फंस गया, कि अरे मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ. And if you see, like your character was the only one that had a quirk in that way कि उसको एक stereotype कर सको. Correct. बाकियों का इतना नहीं था. थोड़ा बहुत I would say रूपाली मैम्स character had that kind of, but then she got a show like अनुपमा. Yeah, but तुम देखो कि अनुपमा कर रही है बहुत कुछ है,
with and wonderful she is doing. पर घूम फिर करके वो उसका रेफरेंस पहले मोनिशा ही आ जाता है. Yeah. मतलब न्यूज़ वाले भी पहले मोनिशा ही लिखेंगे, फेम ऑफ साराभाई वर्सेस आई मोनिशा एंड अनुपमा. वो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स वेरी मच ऑन द मेकर्स यार, कि आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं क्या. Yeah, and obviously एक सेंस ऑफ प्राइड भी आता है बिकॉज यू हैव बीन एसोसिएटेड विद इट. इट जस्ट वो जब एक थोड़ा हिंड्रेंस बनने लग जाए इन डूइंग एनीथिंग मोर, दैट इज व्हेन इट स्टार्ट्स टू गेट अ लिटिल. True. बट बाय द वे, हाउ वाज योर वाइफ्स रिएक्शन टू द काइंड ऑफ रोसेश का कैरेक्टर पूरा? बिकॉज इट वाज अ वेरी कैरिकेचरिश कैरेक्टर. सो उसमें हाउ वाज योर वाइफ्स रिएक्शन? बिकॉज No, I just got married. In fact, शादी के 3-4 महीने के बाद ही साराभाई हुआ था. तो बिकॉज जो 2 दिन साराभाई की आवाज़ में बोलता रहा ना, सो हालांकि बाद में ऑनेस्टली आई फील दैट शी टुक प्राइड इन द फैक्ट दैट रोसेश इज भाई. इनफैक्ट बहुत बाद में लोगों को पता चला था कि मेरी शादी हुई है. व्हेन साराभाई वाज अबाउट टू गेट ओवर, देन दे रियलाइज दैट आई वाज मैरिड. जब एक बार न्यूज़ में आया कि रोसेश इज मैरिड, तब आधी से ज़्यादा जनता तो कि नहीं. मैंने कहा हाँ, मुझसे भी गलती हो गई. No, but it was all of them have loved. In fact, kids have now watched it. अब जा करके देखना शुरू किया इन लोगों ने. हम लोग Because भी अभी देख रहे समझ, हाँ, इनकी समझ में तब आया नहीं था. Elder one saw it during COVID. Younger one is yet to watch. But हाँ, he's started. Oh, he does not know what he's in for. Which has been your favorite episode of the show? Like I have two. One was पोपट काका, हाँ, जो गुजर गए. अमेरिका जाने वाला वीज़ा कैंसिल होता है, नहीं मिलता है इसको. हाँ. सो एक वो वाला फेवरेट एपिसोड है मेरा, और एक जिसमें मैं किडनैप हुआ हूँ वो वाला. हाँ, मेरे 2 है. एक तो वो वाला क्या था वो, रोसेश मेरा छोटा बच्चा, कच्चा केला वाला, इंदू मेरा बड़ा बच्चा, कवि सम्मेलन. हाँ, कवि सम्मेलन. एंड द सेकंड वन आई लव जस्ट फॉर सतीश सर एंड वो मधुसूदन भाई की वो जो कम्युनिटी, वो जब ब्लैकआउट होता है, हाँ, उसमें दैट इज लाइक क्रेजी. वो जो इंदू और मधुसूदन के बीच का है, that is crazy level. What a writing, yaar. What writing, and I feel like they have given And you. not even one scene we had improvised. Not even one line we had to ever add or subtract. Yeah, and I feel इतना perfect rhythm हो था ना उसका शो का. and I feel that is the reason why people love Sarabhai also a lot, is because वो शो के साथ बॉन्डिंग खत्म नहीं हुई. True. You guys still, अभी recently जब आप लोग डिनर पे मिले थे, and whenever you guys meet, people are still kind of reading over. मुझे मिले, क्या हो गया रोशू बुलाती है वो अभी भी राजेश ने बुलाया, रोशू ही बुलाएगी. हाँ, क्या हो गया रोशू, तूने वजन क्यों बढ़ा लिया? मैंने कहा हड्डी वड्डी के. हाँ नहीं ठीक है, फिर तो ठीक है. She is more Monisha in real life. तू चालू रहेगा उसका. I feel like साल में अगर आप 3 बार मिलोगे तो 3 बार ये न्यूज़ जरूर आएगी कि अगला सीजन आ रहा है. That has become the norm. हाँ, हम लोग खुद ही डर जाते हैं कि फोटो डालना है क्या. पहले हम लोग फोटो आपस में ले लेते, वीडियोस ले लेते, फिर होता है कि शुड वी, सुन अभी तो मत कर, क्योंकि इसी समय रिप्लाई करना पड़ेगा, सुबह करते हैं. तो फिर वो टाइम कोऑर्डिनेट होता है कि चल कर रहे हैं, कौन डाल रहा है. तो उस दिन तो इनफैक्ट रूपाली हैड शेयर्ड वो पुराने एक एपिसोड का कुछ मेकिंग था. तो शी शेयर्ड इन ऑन साराभाई ग्रुप में, और मैंने इमीडिएटली कहा कि कोलैब कर और इसको डाल देते हैं इंस्टा पे. तो मैंने डाल दिया एंड सडनली दैट वेंट वायरल ही हो गया उसको. तो आई रिमेंबर आई वाज इंटरव्यूइंग सतीश सर थोड़े टाइम पहले, एंड मार्च अप्रैल की बात है, एंड ही वाज टेलिंग मी कि आप कितना भी देखो, बट एवरी वन ऑफ दैट टीम इज टुडे डूइंग डिफरेंट एंड गुड वर्क एट द सेम टाइम. सेम उसी समय हैप्पी फैमिली था रत्ना जी का, सतीश जी सर का वो यूनाइटेड कच्चे आ रहा था. यू वर डूइंग सो मच वर्क, देन सुमित इज डूइंग वागले की दुनिया, एंड रूपाली वाज डूइंग अनुपमा. एवरीवन इज डूइंग सो मच वर्क, एंड द बेस्ट थिंग इज यू ऑल टेक प्राइड इन ईच अदर्स अकम्प्लिशमेंट्स. Absolutely, because there is no reason for jealousy या वैसा कुछ. वो
एक तो सब इतने अलग एज ब्रैकेट में हैं, सब इतने अलग, तो कंपटीशन है ही नहीं आपस में ना। तुमको रोल वही मिलेगा, सतीश जी को उनके एज के हिसाब से मिलेगा, मुझे मेरा हमेशा द्वंद्व में रहा क्योंकि प्रोजेक्शन हमेशा यंग रहा और मुझे ये लगता रहा कि मैं थोड़ा सा मैच्योर्ड काम करूं बिकॉज यंग वाले में कितना पड़ा रहेगा आदमी। मोनीश यार। बैल से सीधे प्रेम कैटेगरी प्रेमनाथ उसमें आ गए। बट हाउ वाज दैट ऑफ स्क्रीन इक्वेशन विद रत्ना जी? बिकॉज ऑन स्क्रीन तो यू एंड हर वर लाइक अ टीम, Correct. बट ऑफ स्क्रीन हाउ वाज दैट? यार मैं सारा भाई का मतलब तुमको बता दूं कि जो डायनेमिक्स है जो सारा भाई शो के अंदर है वही रियल लाइफ में है। दिस द सेम डायनेमिक्स, मतलब आई एम स्टिल द रोसेश ऑफ दैट ग्रुप, रूपाली विल ऑलवेज बी मोनिशा ऑफ दैट ग्रुप, रत्ना जी हर रिएक्शंस टू एनी व्हाट्सएप मैसेज इज वेरी माया सारा भाई, इंद्रवदन इज वेरी कांडी, हमेशा वो आग लगाने वाला जो है, सुमित इज वन बैलेंस्ड आउट, तो वही कैरेक्टर्स हैं। बाय द वे यू वर द लास्ट पर्सन ऑफ द साराभाई फैमिली आई हैव इंटरव्यूड। क्या बात कर रहे हो? लिटरली आई हैव इंटरव्यूड ऑल फोर बिफोर, मैं सही समय पे आ गया, और इसके बाद मैं देना भी बंद कर and- दूंगा। and 3 out of those 5 have happened this year. ओह Ratta ji first time happened this year, Satish sir happened this year, and now you also have happened this year. मेरा ऐसे complete हुआ है. But I have to say like this has actually been like a very nostalgic ride for me as well because आज भी मेरा हॉटस्टार अगर आप खोल के देखेंगे सारा भाई का एक ना एक एपिसोड चल रहा होगा। and I feel that is something we all, at least the 90s kids, the early 2000s who have grown up on it. We have kind of lived through it. True. And I don't think Indian TV has created a comedy show like that ever. And कहीं मुझे लगता है कि उस समय उसका ना चलना भी एक kind of was a It was blessing way in ahead of its disguise. time also, so that's Way why, ahead of its and I time. think this is the time. Yeah, and it was like a blessing in disguise also because अगर वो चल जाता तो हो सकता है उसको भी थोड़ा चैनल्स पुश करते कि और खींच दो, and फिर वो और खींच जाता तो फिर people might not have responded the same way. एक लाइफ में आप एक काम वैसा वाला कर ही लेते हो। हाँ. So I will end this with the most cliche question you have been hearing. बोलो। Season 3 कब आएगा? क्या आएगा? क्या नहीं आएगा? Because I know. As you said that everyone is busy with different things, so ऐसा नहीं है, it's not there on the cards. But we are just figuring out the right time. Everyone should be free to do that. Yeah. You know, so I think the day they do that, it will just bounce back. Yeah, and I एक think सीजन तो बनता है यार, एक सीजन तो बस. एक सीजन इसलिए भी बनता है बिकॉज उसमें जो सेकंड सीजन में मेरी गर्लफ्रेंड थी वैभवी, शी पास्ड अवे, सो दिस विल बी लाइक ट्रिब्यूट टू हर यार, बिकॉज वो एक बड़ा was you know, very shocking. so ट्रेजेडी के बिहाइंड कॉमेडी, कॉमेडी के बिहाइंड ट्रेजेडी, यही चलता And है। I remember the day it had happened, that same day also. नितेश, Yeah, Nitesh so I did a also. show with him जिसका बहुत जिक्र नहीं हुआ है, महाराज की जय हो on Hotstar. You might get to see that. So we were playing rajas opposite to each other. Yeah. I You was and in Rupali Delhi. both have worked with both of them. चलो ये तो यार पता नहीं, इसलिए खुश रहो Yeah. जब तक हो तब तक हो। But actually, one more season, I think for the audience also needs it. Every one of us needs it. You also need it, and I hope that happens soon. JD sir and Atish sir lock a script soon, and Yes, you all yes, absolutely. get the time to shoot for it soon. Also, by the way, Satish sir had told me that Rupali had put this condition in front of Rajesh Shahi that even if Anupama works, if Sarabhai comes in between, I will leave this show for that. हाँ, That's she has a not t-shirt. said that leave that. Basically, she will But she prioritize will, that. हाँ, मतलब you will will have to take prioritize out time for her to shoot that. I Yeah, remember yeah. Satish sir have told you ना वो है रिश्ता. Obviously कोई क्यों ना करे यार। Obviously. But Rajesh sir, thank you so Thank much you, for yeah, giving thank me you, this time. Akshay. Actually been a very nostalgic ride for me, and I hope you also had a good time अरे reminiscing एब्सोल्युटली, about मतलब all मैं these things. वो सारे पॉइंट्स, वो जो ट्रेन यात्रा और वो सब जो बात कर रहा था, आई नेवर स्पोकन टू एनीथिंग। A royal ride. I can speak about like that whole that especially that marriage episode. मतलब वो 1 घंटा में बोल सकता हूँ बिकॉज इतने एक्सपीरियंसेस थे उसके।
but कुछ वो ही वहाँ बोलो। पे जिस तरह से कपड़ा पहन करके गया था ना, तो कुछ लोगों को तो ये भी लगता था कि ये किसी प्रोड्यूसर का बेटा है, तो मैं भी उसी चौड़े में चलता था। समन आज में तुम उनके बेटे हो गया, वो जो प्रोड्यूसर अपने ये हैं। हाँ नहीं, वो एक्चुअली अंकल है मेरे। आधे लोग कपूर खानदान से भी रिलेट कर रहे होंगे उससे। वो इसलिए तो कोई टेंशन ही नहीं था स्टेज पे चढ़ने में। But actually, these stories I feel like is what make your career very inspiring also, and it shows कि मतलब you also don't have to take everything very seriously all the time. Yeah, let it You can just actually flow. have fun while doing it. That's why I started with that. I've never worked that. I worked joyfully. Yeah. But thank you so much, sir. Thank It you. has been a I- pleasure getting Yes. to talk to you. Hope you had a good time. because I Yep, had a great time. absolutely, absolutely. It Thank was you, sir. Pleasure. Thanks you. Hi, I'm Rajesh Kumar, and you are watching Bollywood Bubble.